السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. کچھ سنا تم نے؟ شاکرہ خالہ نے گھر میں گھستے ہی بغیر سلام دعا کیے اماں کی لا علمی کو مزید دہلا دیا. کیوں، کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے، علیم صاحب کی چھوٹی بیٹی اور بیٹے کی بھی منگنیاں ہو گئی. شاکرہ خالہ اب تخت کے پاس پڑی کرسی پہ براجمان ہو چکی تھیں اور اس موضوع پہ بولنے کے لیے نہ صرف اماں اور شاکرہ خالہ بلکہ محلے کی تمام خواتین کے پاس ڈھیروں باتیں تھیں. کمرے میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ناصرہ کے ہاتھ میں تھما قلم ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا. سمن تو اس سے چھوٹی تھی، ابھی 3rd ایئر میں ہی تھی وہ، جبکہ ناصرہ کو MA کیے ہوئے بھی 3-4 برس بیت چکے تھے اور وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی. اس سے بڑی شاہینہ آپا کی شادی ابھی کچھ مہینے پہلے ہوئی. باہر سے اماں اور شاکرہ خالہ کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. اللہ جانے ان میاں بیوی کو کون سا منتر آتا ہے کہ دھڑا دھڑ رشتے آ جاتے ہیں. ہاں، 3 بیٹیاں اور 3 ہی بیٹے تھے، سب کی شادیوں سے فارغ ہو گئی. بس یہ 2 بہن بھائی ہی بچے تھے، ان کے بھی رشتے طے کر دیے. رشتے کیے کہاں ہیں؟ اماں کی آواز میں رشک کے بعد اب تجسس تھا. بیٹے کی منگنی تو اپنی نند کی بیٹی سے کی، حالانکہ تم نے دیکھا ہے کہ بیٹا تو اچھا خاصا ہے علیم صاحب کا، جبکہ وہ لڑکی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. رنگ بھی کافی دبتا ہوا، نقش بھی بس گزارا ہی. شاکرہ خالہ نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا جو ابھی ابھی ندا رکھ کر گئی. تو پہلے بچوں کی شادیوں میں بھی یہی کیا تھا ان لوگوں نے. پہلی بیٹی کی شادی بھی چھوٹی سی عمر میں کر دی، جبکہ وہ بھی FA میں تھی. کون سی عمر نکلی جا رہی تھی جو اتنے بڑے خاندان میں پھنسا دیا. 4 نندیں، 2 دیور، ساس سسر، ابھی جا کر کہیں سب نندیں دیور شادیوں سے فارغ ہوئے، پھر ساتھ ساتھ اپنے بچے ہو گئے. کوئی فراغت، کوئی سکھ، کوئی چین کا لمحہ تو بیچاری نے گزارا ہی نہیں. اماں خوب جوش و خروش سے بول رہی تھی اور شاکرہ خالہ ان کی ہم نوا تھی. ہاں تو اور کیا، جب پہلے بیٹے کی شادی کی تو میں نے بھی کہا کہ پہلے بیٹیوں سے فارغ ہو جاؤ تو بیٹے کی پھر شادی کرنا. بہو بیٹیاں برابر کی ہوتی ہیں، خام خواہ جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں. تو ہنس کے کہنے لگی علیم کی بیوی. نہیں خالہ، میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں، اور پھر رضا کو دفتر کی طرف سے گھر ملے گا، دونوں میاں بیوی ادھر ہی رہیں گے. ہاں، خود کو بہت عقل مند سمجھتی ہے علیم کی بیوی. وہ کیا کہتے ہیں خالہ، جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے. سب بچوں کی نوکریاں بھی وقت پہ لگ گئیں، رشتے بھی خوب ہو گئے. کیسی اچھی قسمت ہے ان کی. خوب ٹھنڈا سانس لیا تھا اماں نے. ندا ایک ٹرے میں 2 کپ چائے رکھ کر کمرے میں آ گئی. باجی سنا آپ نے، شاکرہ خالہ بڑی نیوز لے کر آئی ہیں. ہاں، ناصرہ کے چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ ابھری. تمہیں نہیں بتایا تھا سمن نے، تمہاری تو کلاس فیلو ہے. بتایا تھا باجی، اور میں آپ کو بتانا بھی چاہتی تھی، مگر جب میں کالج سے آئی تو آپ سو رہی تھی، پھر بچے پڑھنے آ گئے آپ کے پاس. پتہ ہے باجی، وہ شینا ہے نا، وہ سمن کے گھر کے پاس رہتی ہے. وہ بتا رہی تھی کہ سمن کے سسرال والے گاؤں میں رہتے ہیں. اس کا منگیتر بھی کوئی سمارٹ قسم کا بندہ نہیں، بلکہ کافی پینڈو سا لگ رہا تھا، جبکہ بیچاری سمن تو اتنی خوبصورت اور نازک سی ہے. ہم سب نے اس کا بہت مذاق اڑایا کہ گاؤں جا کر مکھن اور لسی کھا پی کر تم بھی خوب موٹی ہو جانا. ویسے اس کی شادی بھی ایک ایگزامز کے بعد ہوگی. ناصرہ نے بھی دل کو سمجھایا کہ اگر سمن کی منگنی ہو گئی ہے یا اس کی باقی بہنوں کی جلد شادیاں ہو گئیں تو ان کے اپنے مقابلے میں کم معیار کے رشتے ہی ملے. اچھے پڑھے لکھے سٹینڈرڈ کے رشتوں کے لیے اس زمانے میں ہر کوئی انتظار ہی کرتا ہے. شاہینہ، ناصرہ، ندا اور فرحہ، وہ لوگ 4 بہنیں تھیں اور 2 بھائی. معین بھائی شاہینہ آپا سے چھوٹے تھے، وہ خود بھی 35 برس کے ہو گئے تھے، جبکہ ماجد ناصرہ سے چھوٹا تھا اور ابھی زیر تعلیم تھا. شاہینہ آپا سب بہن بھائیوں میں سب سے اچھی شکل و صورت کے مالک تھی. ابھی FA میں تھیں کہ خاندان برادری اور جان پہچان کے لوگوں سے رشتے آنے لگے. کچھ لوگ ان کے حسن کے مداح تھے تو کچھ اماں کے سلیقے سے متاثر، جن کا گھر تقریباً برابر کے 6 بچوں اور محدود آمدنی کے باوجود
हर वक्त चमकता रहता। घर का रहन सहन भी काफ़ी अच्छा था। जैसी माँ वैसी बेटी के मकूले पे यकीन रखते हुए अक्सर लोग शाहीना आपा के तरफदार हुए। अम्मा के दिल में अपनी बेटी की कदर कीमत का एहसास फ़ख्र बन के जागा। उन्हें हर रिश्ते में कोई ना कोई खामी या कमी नज़र आती। रुकैया खाला का भतीजा शक्ल सूरत में बहुत मामूली और छोटे कद का था। अच्छी पोस्ट पर था या पढ़ा लिखा तो था। रिजवी साहब का बेटा कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी तालीम बहुत कम थी, जबकि अब्बा आला तालीम के हामी थे और शाहीना को भी एमए ज़रूर करवाना चाहते थे। इसरार भाई का बेटा तकरीबन 27 साल का हो चुका था, जबकि शाहीना अभी बमुश्किल 17-18 बरस की थी। जुबैदा फुप्पो का बेटा भी ज़ेर तालीम था, उम्र भी मुनासिब थी, बहुत लायक फायक था, यकीनन तरक्की भी करेगा। फिर जुबैदा फुप्पो अबा की सगी बहन भी थी। उन्होंने बहुत ज़ोर दिया कि फ़िलहाल सिर्फ मंगनी कर देते हैं, शादी दोनों की तालीम मुकम्मल होने पे होगी। आखिर घर की बात है, किसी छान पटक की ज़रूरत नहीं। मगर अम्मा का कहना था कि नवीद सबसे बड़ा है, उससे छोटे 7 बहन भाई हैं। लाख नवीद के अब्बा अपना कारोबार चलाते हों, मगर फिर भी बड़े बेटे की जिम्मेदारियां होती हैं और वो अपनी लाडली बेटी को उम्र भर के लिए किसी जंजाल में नहीं फंसाना चाहती थी। अब्बा के इनकार पर पप्पो कितना अरसा खींची खींची रही। फिर उन्होंने नवीद की मंगनी अपनी नंद की बेटी से कर दी और 4-5 साल के वक्फे से शादी भी बहुत धूमधाम से हुई। नवीद की दुल्हन बहुत खुश थी, जबकि शाहीना आपा तब तक कंवारी ही थी। अब्बा के साफ इनकार और अम्मा की मेन मेख निकालने पर धड़ाधड़ आते रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आने बंद हो गए। उधर शाहीना आपा के खूबसूरत स्याह बालों में चांदी झिलमिलाने लगी। चमकदार गुलाबी जिल्द चमक और रंगो रूप खोने लगी। वो डबल एमए करने के बाद एक कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते थकने लगी। उनकी चिड़चिड़ाहट और बददिली सब घर वालों को अपनी लपेट में लेने लगी। नासरा, निदा और फरा भी कद में शाहीना से बड़ी लगने लगी तो अम्मा को होश आया। मगर अब अव्वल तो उस रफ्तार से रिश्ते ना आते थे, और जो आते भी नासरा बल्कि निदा के तलबगार होते। नासरा का रंग सांवला था, जबकि निदा और फरा साफ रंग की मालिक थी। फिर कम उम्री का अपना हुस्न होता है। तब अब्बा के किसी जानने वाले के तवस्सुत से बेग साहब का रिश्ता आया। कामरान बेग तकरीबन 50 के इर्द गिर्द थे। पहली बीवी की वफात के बाद तन्हाई का शिकार थे। उनकी बहन बेऔलाद थी। इनके तीनों बच्चे उन्हीं के पास थे और अब इनको दूसरी शादी की ज़रूरत थी। तब अम्मा ने नासरा से कहा, तुम शाहीना से पूछ लो, वरना अब जो रिश्ते आ रहे हैं उनमें सबसे बेहतर यही है। बच्चे पप्पी के पास है, पढ़ा लिखा भी है, फिर घर कारोबार सब कुछ ही तो है। शाहीना खुश रहेगी। और अम्मा के इस इस्तफसार में छुपे असबात को नासरा ने भी समझ लिया और शाहीना ने भी, सो उसने भी हाँ कर दी। नासरा ने लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर रखा था। तकर्रुरी के कागजात मिले तो घर में सबको इतला दी। टीवी पे नजरें जमाए मोइन भाई ने उसे धीरे से मुबारकबाद दी और फिर अम्मा से कहने लगे, अम्मा, शाहीना आपा के वक्त भी आप लोगों ने सोच विचार में सारा मुनासिब वक्त ज़ाया कर दिया। अब नासरा को शाहीना ना बनाए, जो भी मुनासिब रिश्ता आए हाँ कर दे। तो मुनासिब आए तो अम्मा सुलग ही गई। कोई क्लर्क तो कोई दुकानदार, और यहाँ तक के दूसरी शादी वाले रनवे तक चले आते हैं। अब भला कैसे आंखें बंद करके फैसला कर दें। मोइन भाई चुप हो गए। तब एक रोज़ उनके एक कॉलीग का रिश्ता आ गया। वो लोग सरगोधा की ज़मींदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। सादा मिजाज से लोग थे, मगर अम्मा अड़ गईं कि इतने उजाट से लोग। फिर सारा ससुराल गांव में, चाहे बेशक मियाँ शहर में रहता है, मगर फिर भी खुशी गमी शादी आना जाना इन लोगों से मेल जोल तो रखना पड़ेगा। और नासरा इतनी नाजुक मिजाज है, भला कैसे बर्दाश्त करेगी। नासरा भी उन्हीं की हम ख्याल थी। तभी उसे इदराक हुआ कि उसकी कॉलीग और सहेली आसफा के आने पर मोइन भाई के चेहरे पे सुर्खी सी छा जाती। वो बगैर कहे बेकरी से मुख्तलिफ अशिया ले आते। आसफा सामने आ जाती, उन्हें सलाम करती तो जवाब में उनका लहजा बहुत नरम फवार सा बन जाता। नासा ने मोइन भाई से पूछा तो कम गो से मोइन भाई लम्हा भर को झिझके, फिर आहिस्ता से कहने लगे, नासरा,
आसफा मुझे एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की लगी है, अगर तुम मुनासिब समझो तो अम्मा से बात कर लो। मगर अम्मा तो सुनते ही गोया हत्थे से उखड़ गई। लो भला, 4 पैसे कमा कर घर में क्या दे रहे हैं कि आंखें माथे पे धर ली। सुनो तो इस लड़के की बातें। पहाड़ सी 3 जवान बहनें अम्मा बाबा के सीने पे सिल की तरह धरी हैं और इन्हें अपने शादी ब्याह के चोंचले सूझ रहे हैं। मगर अम्मा, इसमें हर्ज ही क्या है? जिसके नसीब में है उसका तो होने दे। नासरा ने अम्मा को समझाना चाहा। अब्बा ने भी धीरे से नासरा की तायद की। वो देख रहे थे कि जवान बेटे के चेहरे पे तन्हाई उदासी बन के छाने लगी है। उसकी रातें बेख्वाब हो चुकी हैं। आप तो लगता है सठिया गए। खुद सोचे, बहू घर में आ गई तो मोइन उसकी बात सुनेगा या हमारी? 3 नंदों को कौन लड़की बर्दाश्त करती है? अम्मा झला कर अब्बा पे बरस पड़ी थी और बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठे मोइन भाई उठकर कमरे में चले गए। समन की शादी खूब धूमधाम से हुई। मोहल्ले भर के लोग भी बुलाए गए। निदा का घर अगरचे 3 गलियां छोड़कर था, मगर मोहल्ले में और फिर वो समन की क्लास फेलो भी थी। चुनाचे घर भर का बुलावा था। नासरा तो नहीं गई, मगर निदा, फरा और अम्मा गई। वापस आकर वो लोग शादी की ही बातें करती रहीं। फरा कहने लगी, समन कितनी अच्छी लग रही थी। जेवर काफ़ी भारी था, मगर फैशन के मुताबिक था, और ड्रेस भी उन लोगों ने बड़ी अच्छी बनाई। उन लोगों ने नहीं, समन की बहनों भाभी वगैरह ने पसंद की। उन लोगों ने तो बस पैसे दे दिए थे। निदा के कहने पे अम्मा ने ठंडी सांस ली। अल्लाह मियाँ कभी तो हमारी भी सुनेगा, हमारी भी किस्मत खुलेगी। कैसे कैसे लाड उठा रहे थे, कितने अरमानों से ले जा रहे हैं समन को। अलीम की बीवी तो खुशी से खिली नहीं समा रही थी। मगर जो भी है, माहौल का फर्क बहुत पड़ता है। सारी उम्र शहर में पली बड़ी लड़की को उठा के गांव में भेज दिया। समन के ससुराल वालों ने वलीमे का बुलावा मोहल्ले भर को ही दिया। उनकी मिनी बसें गांव से शहर तक चलती थी। दोपहर की दावत थी। सुबह सुबह एक बस अलीम साहब के दरवाजे पे आ रुकी। मोहल्ले के अक्सर लोग जाने के लिए तैयार हो गए। अम्मा और निदा भी चली गई। फरा का प्रैक्टिकल था, सो वो ना जा सकी। गांव से वापस आने पे अम्मा के पास अलीम साहब की बीवी की जल्दबाजी की कई दास्तानें थी। ए नासरा, सुनो तो, घर तो काफ़ी बड़ा था, खाना भी खूब वाफर मिकदार में अच्छा बना था, मगर गांव की मैली कुचैली औरतें, नंग धड़ंग बच्चे समन को घेरे बैठे थे। उनके घर के बड़े से सहन में मुर्गियां दंदनाती फिर रही थीं और सहन उनका गलाजत से अटा पड़ा था। सहन के एक तरफ गायें, भैंसें, बकरियां भी बंधी हुई थी और उनकी गलाजत की बू अलग परेशान कर रही थी। सुना है पैसा बहुत है, और ये तो खैर बरी का जेवर कपड़ा देख के भी पता चल रहा था। शायद इसीलिए बेटी दे दी है। अम्मा के साथ बैठी शाकरा खाला ने कहा तो अम्मा चमक के बोली, ए बुआ, ऐसे पैसे को क्या चूल्हे में झोंकना है जहाँ घर के लोगों को उठने बैठने की तमीज ना हो। घर की दीवारें उपलों से भरी पड़ी थी और हर तरफ तो मक्खियाँ भिनभिना रही थी। यूं निदा एमए के साले अव्वल में आ गई। जब समन के यहाँ बेटे की पैदाइश की खुशखबरी मिली, समन की अम्मी बेटी से मिलने जाने लगी तो शाकरा खाला को भी साथ ले गई और वापसी पे आकर अम्मा को नए किस्से सुनाने लगी। सुनो तो, वाकई अलीम की बीवी बड़ी किस्मत वाली है। सारी औलाद ही राज कर रही है। अबू समन को देखो कैसे गांव के गंवारों में गई थी, मगर उसका घर देखो कि क्या शहर में किसी की कोठी होगी। हम तुम तो भाई किसी की ताड़ में नहीं। और तो और उसका शोहर भी काफी समझदार लग रहा था, और समन की सास नंदे उस पे वारी सदके। उसकी सास बता रही थी कि अल्लाह के फजल से पैसा तो बहुत है, और जब समन जैसी पढ़ी लिखी समझदार बहू आई तो उसने सारे घर का जैसे हुलिया बदल डाला। सरफराज समन के मियाँ ने शहर से मिस्त्री बुलाकर पुरानी हवेली मुरम्मत करवाई। भैंसों, गायों, मुर्गियों वगैरह के लिए अलग से बाड़े डरबे बनवाए, और वही फार्म हाउस कहते हैं जिसे, वही बन गया है। घर के एक कमरे में समन ने स्कूल बनाया है जहाँ वो गांव की औरतों को लिखना पढ़ना सिखाती है। फिर वो अम्मा को अपना जोड़ा दिखाने लगी जो समन की सास ने पोते की पैदाइश की खुशी में उन्हें दिया था। अम्मा कुछ चुप सी थी।
नासरा और मोइन भाई तो अपनी ज़िंदगी की बागडोर अम्मा को थमा के खामोश थे, मगर माजिद ऐसा न था। एक शाम वो अम्मा के पास तख्त पे आकर बैठ गया। अम्मा, इरफाना मेरे दोस्त जुनैद की बहन है, आप वहाँ मेरा रिश्ता लेकर जाएं और अगले माह की कोई भी तारीख पक्की कर दे। अम्मा के सर में तेल लगाती नासरा की उंगलियां साकत रह गईं। क्या कहा तूने माजिद? 3 बहनों और बड़े भाई के होते पहले तेरी शादी कर दूं, और वो भी एक अनजान लड़की से? ये कैसे हो सकता है? अम्मा ज़रा संभल के बोली थी, लेकिन माजिद तो फैसला कर चुका था। अगर इनकी शादियां सारी उम्र ना हों तो मैं भी क्या बड़े बहन भाइयों की तरह बूढ़ा हो जाऊं? और इरफाना मेरे लिए अनजान नहीं है। आपकी मर्जी है कि अपने हाथ से मेरी शादी करती हैं या फिर मैं खुद ही निकाह कर लूं। अम्मा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि बाहर सहन में चारपाई पे लेटे अब्बा ने अंदर आकर जैसे सबको खामोश करा दिया। माजिद, हम कल ही तेरा रिश्ता लेकर जाएंगे और इसी जुमे को निकाह और रुखसी की तारीख भी ले लेंगे, और अल्लाह ना करे कि तेरे बड़े बहन भाई हमेशा कंवारे रहे। यूं माजिद की शादी हो गई और वह अपनी दुल्हन के साथ कराए के घर में मुंतकिल हो गया। नासरा की एक सहेली अपने कज़न का नासरा के लिए रिश्ता लेकर आई, लेकिन लड़के और उसकी बहनों को निदा पसंद आ गई। अम्मा को नासरा से पहले निदा की शादी पे एतराज़ था, मगर इस बार अब्बा और मोइन भाई ने अपनी मर्जी चलाई। रिश्ता माकूल था, इसे जल्द ही शादी की तारीख भी तय हो गई। और फिर निदा के वलीमे पे उसकी नंद को अपने देवर के लिए फराह पसंद आ गई। फराह के रिश्ते की हाँ करने के बाद अब्बा इशा के बाद नासरा के कमरे में आए। बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारा हक बर वक्त अदा ना कर सका, लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारी माँ और मेरी ना आकिबत अंदेशी से जो कोताही हुई उसकी तलाफी की कोशिश ज़रूर करूँगा। बस तुम मुझसे नाराज़ ना होना। और अब्बा के सामने सर झुकाए नासरा इतना ही कह सकी, ऐसा मत कहें अब्बा, भला आपने मेरा क्या बुरा सोचा होगा, मैं क्यों आपसे खफा होने लगी। उस शाम वो एक किताब को ले यूं ही बरगर्दानी कर रही थी कि साथ के कमरे में बैठे अब्बा की आवाज़ आई, मेरा ख्याल है बेगम, अब तुम्हें मोइन की शादी में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। कई लड़कियां हैं मेरी नज़र में, कुछ तो अपने ख़ानदान की, और फिर निदा फराह के ससुराल में भी काफ़ी अच्छी लड़कियां मौजूद हैं। मैं सोचती हूँ नासरा का नसीब भी खुल जाता तो दोनों का इकट्ठा कर देती, मेरे सीने से बोझ हट जाता। नेक वक्त बेटियां बोझ नहीं, जिम्मेदारी होती हैं, अमानत होती हैं। बर वक्त और मुनासिब अमीन के हवाले करना वालिदैन का फ़र्ज़ होता है। सिर्फ अल्लाह के मशवरे यानी इस्तिखारे से ही हम दुरुस्त फैसले कर सकते हैं, और ये राह मुझे माजिद और अलीम साहिब ने दिखाई है। अब्बा की बातें सुनते सुनते नासरा के दिल में एक मलाल की लहर उभरी। गोया सबको मंजिल और ठिकाना मिल रहा है, सिर्फ एक मैं ही बेमाया और फालतू हूँ जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं। दूसरे रोज़ कॉलेज में आसफा को देखते हुए उसके जहन में जैसे एक कोंदा लपका। आसफा तकरीबन उसकी हम उम्र ही थी या चंद साल छोटी थी, मगर उसकी सभी रंगत और गहरी आंखें और नाजुक सरापा उसे कम उम्र ही दिखाता था। 3-4 साल पहले उसका निकाह हुआ था, मगर जहेज के मसले पर रुखसी से पहले तलाक हो गई, और उसके बाद से वो अभी तक तन्हा ही थी और यहाँ जॉब कर रही थी। कॉलेज से आकर उसने बहुत बेचैनी से मोइन भाई के आने का इंतज़ार किया। उनके आते ही खाने की ट्रे उनके कमरे में लेकर आ गई। मोइन भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो भाई, क्या बात है, लेकिन पहले पानी का एक गिलास पीने की इजाज़त दो, बहुत थक गया हूँ और प्यास भी लग रही है। वो मुस्कुराए थे, उनकी कनपटियों पर बालों में सफ़ेदी झलक रही थी और चेहरा उम्र की चुगली खा रहा था। हाँ आप बोलो, क्या बात है। वो कुछ झिझक गई, फिर बोली, मोइन भाई, आपको आसफा याद है? उन्होंने नज़रें उठाई जिनकी एक एक सतर में इकरार था, और फिर सर झुका लिया। वो मोइन भाई, ऐसा है कि आसफा को रुखसी से पहले कम जहेज की वजह से तलाक हो गई, और अगर आपको एतराज़ ना हो तो अम्मा से बात करूं? वो जल्दी से कह गई। नासरा, मोइन भाई की पलकों पे नमी उतर आई। आसफा की तलाक पर नहीं, अपनी उम्र पे एतराज़ है। अब इस उम्र में भला ये मुनासिब है? हाँ मोइन भाई, आज ही तो सहारा चाहिए आपको भी और आसफा को भी। फिर नासरा के कहने पर वो उसकी तरफ देखते रह गए, जो उनकी निगाहों का मफहूम समझ के नज़रें चुरा गई थी। फिर अब्बा और अम्मा की दुआएं रंग ले आई।
بظاہر بہت تاخیر سے، مگر روز اول سے ان کی قبولیت کا یہی وقت مقسوم تھا۔ شاہینہ آپا کی سوتیلی بیٹی کی شادی تھی۔ شاہینہ آپا کے اصرار پر ناصرہ بھی گئی اور وہیں ایک لڑکی کی اماں نے اس کے لیے سوال کر ڈالا، خالہ پلیز انکار مت کیجیے گا، آپ کی بیٹی ہمیں بہت اچھی لگی ہے، سادہ، سنجیدہ، پروقار۔ آج کل کہاں ملتی ہیں ایسی لڑکیاں؟ آپ کامران بھائی سے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو میرے بھائی جان کے بارے میں بتا دیں گے۔ میرے انیس بھائی نے اپنی ساری جوانی ہم چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتے اور پھر ہمارے گھر آباد کرانے میں گزار دی، اپنے لیے کچھ سوچا ہی نہیں۔ والدین ہوتے تو ان کا سوچتے، پر والدین کی اچانک حادثاتی موت نہیں تو ان پر یہ سب ذمہ داری ڈال دی تھی۔ اب کامران بھائی نے مجھے ناصرہ باجی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بالکل انیس بھائی کی طرح ہمدرد، خاموش طبع اور بہت اچھی ہیں۔ اماں حیران تھیں، لیکن ان کی حیرانی شاہینہ اور کامران بیگ نے یقین میں بدل ڈالی جب انیس احمد کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے باضابطہ رشتہ دیا۔ ناصرہ نے بھی چپکے سے ابا کو آصفہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اماں کو اس کے طلاق یافتہ ہونے پہ اعتراض تھا، مگر سدا خاموش رہنے والے ابا اب بہت پختہ فیصلے کرنے لگے تھے۔ چنانچہ اماں کو آصفہ کو بہو بنا کر لانا ہی پڑا۔ لائی تو کچھ بے دلی سے تھی، مگر چند ہی دنوں میں آصفہ نے ان کی من چاہی بہو کا درجہ پا لیا اور ناصرہ انیس احمد کی ہمراہی میں شاہراہ حیات پہ چلتے ہوئے سوچتی ہے، جب اللہ میاں مجھے مامتا کا درجہ عطا کرے گا تو میں اپنی اولاد کی زندگی کے فیصلے کرتے ہوئے ماضی کو ہمیشہ یاد رکھوں گی اور اللہ سے دعا کروں گی کہ مجھے نمود و نمائش، حرص و طمع اور ناشکرے پن سے بچائے اور میں اپنے بچوں کی زندگی کے حق میں بہترین فیصلے ان کی زندگی کے بہترین سالوں میں کر سکوں، تاکہ وہ زندگی کی بہاروں سے موسم بہار میں ہی لطف اندوز ہو سکیں، نہ کہ میری طرح خزاں کی رت میں بہار کی تلاش میں بھٹکتے پھریں۔